Hello guys, welcome you all in your Study Guru and Microsoft Office MS Word series. This is Krishna Gupta. I have already shown you what is Microsoft Office suite package, how to work MS Word environment and file tab, home tab and clipboard. Now I will continue with the home tab, but in this video I will discuss font. So let's start the video and understand it. First is content. Select a template, MS Word main environment after clicking on blank document, home tab, home, font and font dialog box, font color, style and size, font change, case, grow, font shrink, font, clear formatting, bold, italic, underline, strike through, subscript, superscript and text effect and typography, text highlight color. So these all are the contents I will cover in this video. So first we will start from the select a template. How to select a template? Simple, go to Microsoft Office and select a MS Word. After selecting MS Word, you can get this particular environment and you can select any one template from these templates. So these all are the templates categories. So you can select any one template from these template and you can select categories wise also, like business, flyer, card, personal, holidays and education, etc. You can select according to search bar also. You can write here and you got the same template in this particular window, but you have to connect first internet. So this is the select template environment. I have already discussed about these particular environment and how to select, how to search in previous video. You can visit my previous video also. So after clicking on MS Word main blank document, you get this particular environment, just like this is the quick access bar, this is title bar, this is the help, prior, minimize, maximize, close window. And after that you got this particular ribbon, this is the menu ribbon, and these all are the formatting toolbars related to the menu. And next is vertical and horizontal scale. This is scroll bar and this is cursor, this is status bar and this is viewer. I have already created the video in the particular environment, blank document environment. You can watch this video also. I have already shared this video in previous. And next is home tab. Now I will discuss about home tab. I have already told you about the clipboard in the previous video. You can visit also. And after that I will discuss today about font only. So let's start from the font. So this is the font, home font. This is the group of font. These all are the font and the complete is a group. So first start from the फॉन्ट स्टाइल. सो व्हाट इज़ फॉन्ट स्टाइल? सिंपल, फॉन्ट स्टाइल आप कोई भी कंटेंट ले सकते हैं. आपने कोई कंटेंट लिखा और उसको आप किस स्टाइल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, आपका फॉन्ट किस स्टाइल का शो हो. आपका बोल्ड है, टैलिक है, आपका कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, अल्जेरियन है, एजेंसी एफवी है, एरियल है. तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं. आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल हमें मिलता है वो होता है आपका कैलिबरी बॉडी. सो हमेशा हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडो पर जो आपका फॉन्ट स्टाइल मिलेगा वो कैलिबरी बॉडी ही मिलेगा. सिंपल. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका फॉन्ट साइज़ है वो किस तरह से काम करता है. फॉन्ट साइज़ का जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 11, बट फॉन्ट स्टाइल इसके अंदर जो आपका कंप्लीट ये जो छोटा सा आपको एरो दिखाई दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉन्ट स्टाइल मिलेगी, फॉन्ट साइज़ मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा 8 एंड मैक्सिमम मिलेगा 72. लेकिन जब हम इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अगर इससे भी कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आपका जाएगा 1 तक, और नेक्स्ट जो लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट जो आपकी जाएगी 1638. ये आप करके देख सकते हैं अपने फॉन्ट स्टाइल को इंक्रीज़ करके. तो आप इंक्रीज़ किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ. आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन और ग्रेटर देन जो सिंबल्स होंगे आपके वो आपको, ये आपका लेस करने के लिए मतलब फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए, ये फ़ॉन्ट साइज़ को आपका
इंक्रीज़ करने के लिए। तो आप इनको यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह से आपको मिल जाएगी, या तो 1 तक जाएगी वो मिनिमम, और मैक्सिमम आपको जाएगी 1638। तो सिंपल, तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या हुआ इसका, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन या फिर कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। तो इस तरह से आप मैक्स और मिनिमम साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब एक और कंप्लीट आपका ये जो आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा ये शॉर्टकट आपको 1 यूनिट से करेगा। इट मीन्स जो आपके इस स्केल के अंदर प्रेजेंट है, जो आपका ये स्केल है इसके अकॉर्डिंग आपका लेस देन, ग्रेटर देन या आपका मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ फ़ॉन्ट तक पहुंचाएगा। तो इसके लिए जो आपका जंपिंग होगी वो आपकी डायरेक्टली आपका जो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन होगा वो आपका डिस्प्ले करेगा, जो आपके इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर गिवन है उस पर जंप कर जाएगा, और 2222 का आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो इस तरह से यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट आप इसको कंट्रोल लेस देन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल ग्रेटर देन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो काम करेगा वो करेगा ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट किस तरह से किया जाता है, तो ग्रो फॉन्ट के लिए जब हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, एंड श्रिंक फॉन्ट के लिए जो यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस लेस देन। तो ये इस तरह से काम करेगा। तो इसके लिए जो आपका स्केल होगा वो किस तरह से काम करेगा, जैसे आपके पास साइज़ है इस स्केल के अंदर 28, उसके बाद अगर आपका 36 आपका फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, 48 आ रहा है, तो डायरेक्टली वो जंप करेगा अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। सिंपल। ये इसके अंदर और इसके अंदर आपका डिफरेंस क्या था कि ये आपका 2 इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन इसके अंदर जो लिस्ट के अकॉर्डिंग है वो ही आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। सिंपल। अब उसके बाद बात करते हैं हम चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल जब आप चेंज केस पर जाएंगे, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन ये जो आपका मिलेगा वो उसमें मिलेगा सेंटेंस केस। जैसे कि हमने लिखा हेलो, मैंने लिखा हेलो, तो जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो हेलो होगा, बाकी जो होंगे स्मॉल लेटर्स होंगे, तो ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस केस। नेक्स्ट मिलेगा आपका लोअर केस। लोअर केस में हमने क्या किया, सिंपल लिखा हेलो, तो ये आपका सिंपल आपको हेलो मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्मॉल लेटर एंड एंडिंग ऑल्सो फ्रॉम अप टू स्मॉल लेटर। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा अपर केस। अपर केस में आपका अगर कोई फॉन्ट स्टाइल आपका स्मॉल में लिखा हुआ है, आपको इस तरह से अपर केस तक पहुंचाना है, तो ये आपका कहलाता है अपर केस। तो डायरेक्टली आप अपने फॉन्ट स्टाइल को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड का मतलब है कि आपकी अगर कोई भी एक लाइन लिखी हुई है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, मान लो आपके 5 या 6, तो ईच वर्ड जो आपका स्टार्टिंग होगा वो होगा कैपिटल लेटर से। जैसा कि मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए हेलो वर्ल्ड, तो जो स्टार्टिंग का जो लेटर है W और हेलो, ये आपका कैपिटल लेटर में आएगा, बाकी सारे स्मॉल में आएंगे। सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं टॉगल केस। इसके अंदर जो आपका स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो स्मॉल आएगा और बाकी के लेटर्स जो होंगे आपका वो सारे के सारे कैपिटल आएंगे। सिंपल। ये टॉगल केस होता है आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर चुके हैं, लाइक आप बोल्ड, इटैलिक या फिर आप कोई कलर चेंज कर चुके हैं, अगर उसको आप सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए और जो भी फॉर्मेटिंग आपकी होगी वो रिमूव हो जाएगी और ये सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। फिर उसके बाद आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर सिंपल आप सभी जानते हैं। फॉन्ट कलर जब हम इस कंप्लीट इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक कलर बॉक्स इस तरह से आपका रिप्रेजेंट होगा, उसमें से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। मोर कलर करना है तो आप मोर कलर भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल फॉन्ट कलर क्या रखना है आपको उस पर रिप्रेजेंट करता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आ रहा है आपका वो आ रहा है रेड, तो आप सिंपल रेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक या फिर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट सिंपल मैंने लिखा हेलो, तो हेलो के साथ में ये हाईलाइट कलर है, इसके पीछे बैकग्राउंड में आपने मान लो येलो रखना है, तो ये आपको हेलो आपको पिंक कलर दिखाई दे और बैकग्राउंड इसका सिंपल हाईलाइट जैसा शो हो येलो कलर में, तो वो कहलाता है आपका हाईलाइट कलर। सिंपल। उसके बाद बात करते हैं हम टेक्स्ट इफेक्ट की। अब टेक्स्ट इफेक्ट होता क्या है? टेक्स्ट इफेक्ट में सिंपल आउटलाइन कलर
जैसे आप एक टेक्स्ट है उसका आउटलाइन कलर क्या रखना चाहते हैं, तो आउटलाइन कलर में आपके डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं। शेडो आ सकती है इसमें टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर कि आप शेडो कैसी रखना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन कैसा रखना चाहते हैं, आपके फ़ॉन्ट का ग्लो क्या होगा, नंबर स्टाइल्स क्या होंगी, लाइटनेस क्या रहेगी। सिंपल डिफरेंट स्टाइल्स को आप सेट कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट इफेक्ट के थ्रू में। उसके बाद बात करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सिंपल पावर, जैसे मैंने लिखा है x की पावर 2, तो इसका मतलब है ये पावर में आपका क्या है 2, तो सुपरस्क्रिप्ट में ये आ जाएगा। अगर मैं इसको बेस में अगर 2 लिखना चाहती हूँ तो ये कहलाएगा मेरा सबस्क्रिप्ट, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल स्ट्राइक थ्रू। जब आप कोई भी स्टाइल कंप्लीट आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं और आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये स्ट्राइक थ्रू आप कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर लाइन को या फिर कंप्लीट कंटेंट को आप कट करना चाहते हैं, लेकिन आपको विजिबल तो हो लेकिन वो कट हो जाए, इस तरह से आपकी सिंपल काटना। जैसे मैंने लिखा हेलो, और हेलो को मैंने इस तरह से एक लाइन को स्ट्राइक कर दिया, तो ये कहलाता है आपका सिंपल स्ट्राइक। फिर उसके बाद बात करते हैं अंडरलाइन की। अंडरलाइन सिंपल एक अंडरलाइन रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि आपने लिखा हेलो लिखने के बाद आपने इसको सिंपल अंडरलाइन कर दिया, तो ये आपका सिंपल अंडरलाइन है। अंडरलाइन में आपकी कोई भी अंडरलाइन कलर हो सकता है, जैसे आपका पिंक हो गया, रेड हो गया, कलर में आपका ग्रे हो गया, डिफरेंट कलर्स आप अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। और अंडरलाइन का स्टाइल भी आपका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको स्टाइल बता सकती हूँ इसके अंदर कि आपका सिंपल स्टाइल हो गया, आप डबल लाइन स्टाइल यूज़ करें, आप डॉटेड यूज़ करें, आप डैश इस तरह से यूज़ करें, तो इस तरह से कुछ स्टाइल्स हो सकती हैं। आपकी जिग हो सकती है इस तरह की। तो अंडरलाइन आप किस तरह की करना चाहते हैं, आपका अंडरलाइन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका सिंपल है स्टाइल इटैलिक। इटैलिक में क्या है आपका, जैसे मैंने हेलो लिखा, तो हेलो आपका सिंपल ये स्ट्रेट है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो ये कहलाता है इटैलिक, मतलब थोड़ा सा टिल्ड फॉर्म में आ जाता है, ये आपका इटैलिक फॉन्ट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका बोल्ड। बोल्ड मतलब किसी भी तरह का हाईलाइट करना। जैसे आपका जो सिंपल टेक्स्ट था वो मुझे इस तरह का हेलो दिखाई दे रहा था, अब मैं इसी हेलो को अगर मान लो बोल्ड करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, बोल्ड मतलब कि इसको थोड़ा सा और डार्क शो कर दूँ, इस तरह से आप इस हेलो को इस तरह से दिखेगा, तो ये क्या कहलाता है आपका बोल्ड, मतलब आपको हाईलाइट होकर दिखेगा, सिंपल। ये आपका बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हमारा जो फॉन्ट ग्रुप है ये कंप्लीट हो जाता है, और आपको होप सो आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ आया है तो आपको मैं प्रैक्टिकल वीडियो में इस लिंक में शेयर कर दूँगी। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस प्रैक्टिकल वीडियो को देखेंगे तो होप सो आपको कंप्लीट समझ में आ जाए और आप इसको यूज़ करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आप बिफोर दिस कंप्लीट dialog box you can see the font dialog launcher also. This is font, you can see the body and headings, agencies, etc. These all are the styles you can see. I have already told you about these, and these are the font styles also, regular, italic, bold and bold italic. These all are the size and automatic, underline style, and these all are the effect options, and you can see, and this is the OK button. You can select any one from these and checkbox, and after that click on the OK. You can select. So how to open a Word document and use the font formatting, learn all steps one by one, watch the video, link is given in description box, so it is easy to understand. So thanks for watching and be happy.